Hi guys, welcome back to my channel again. So in this video, as you guys can see from the title, this is going to be my Chicago haul, like what I got from Chicago. And yeah, but I think this is the first of my video in which I'm going to just sit and talk. The previous videos were वॉइस ओवर वीडियोज़. सो ये पहली वीडियो जिसके अंदर मैं बैठ के बात कर रही हूँ. सो आई थिंक आई शुड जस्ट introduce my channel in a proper way and introduce myself in a proper way. So I'm just a normal Pakistani girl who likes to try different things and likes all sorts of beauty and fashion things. And I also like to travel and I also like to read and basically I like to do a lot of fun activities. So I thought that I should just make this channel. And yeah, and as soon as I made the channel, the whole world shut down and I had to just quit on my traveling. And 2020 was the year that I was going to travel. Like this was part of my plan, but it did not happen the way I wanted it to. But I think that's okay because um, you know, the way you respond to different things is the way uh, that even if it's a negative thing that I had something planned and I couldn't do it, um, I am taking it in a positive way and trying to do my best with what I have. And I think that's the beauty of a good life. Living a good life is that you should just uh, try to do what you can do best in a given situation. So that's a positive thought for today. And yeah, making the best of whatever you have is the way of a good life, in my opinion. So I have introduced myself, and my channel's name is Comfort Zone. And I wanted to share all the things that I do, the um, fun or educational or whatever things that I do. I wanted to share it on my channel. So that is what we will have. Wanted to do like travel vlogs and recipes and all that, but with the current situations, we will do what we can do. Like I can do whatever is possible, not much is possible in this situation, but khair jo bhi hoga dekhi jayegi. Another thing is that I wanted to have a channel in which like a lot of people can understand, so I wanted to have a channel in English. But I am Pakistani girl and I speak Urdu and English, so I just wanted to incorporate Urdu in it as well. So my Chicago vlogs are in Urdu, and you guys will see a lot of like mixed language stuff here. So it's not like a single language channel. So it's like a mixed channel, and this channel will be about my life, and it's sort of like a diary of my life. Like whatever I'm doing, I will try to record as much as I can and show you guys. There will be part of my life where which I will be keeping away from the camera, so I hope you guys can understand. And it takes a lot of effort to show your self and your personal life in front of the camera on the internet where everyone can see it. But I hope you guys understand that. And I hope you guys have fun along with me, and welcome to my channel and welcome to my life. So let's get started. As you guys can see, I have filled up this whole bucket. I have this broken basket. This is broken from here. So I have this basket um, filled up of stuff that I got from Chicago. So I will take out things and बारी बारी चीज़ें निकालती हूँ और दिखाती जाती हूँ मैंने क्या लिया है और क्यों लिया है और कितने का लिया है and all that, right? So okay, let's get started. So let's put the basket aside. So the first thing that I want to show are these facial razors. These are single blade facial razors. I got these from TJ Maxx, and actually I usually buy stuff like this from what do you call from Amazon.
but I found that these are $4 for 1, 2, 3, 4, 5, 6. I've used one already. There were 6 for $4. I don't think they were that expensive, and they were available, so I just bought them. uh, I in my vlogs I showed my shop with me at TJ Maxx. So if you guys want to see, you guys can go and watch my Chicago vlogs. So these are from this brand Bella Beauty. I have never heard of these. मैंने इनको पहले नहीं पता है कि कौन से ब्रांड है, लेकिन these are working fine. And अच्छा, जो Amazon से लेते हैं उनके अंदर ये बैंड नहीं होता. Let me show you guys. जो Amazon से लेते हैं उनमें you cannot bend it like that. So you can actually bend it, and these are a little bit smaller, so you can put them in your makeup bag, or like you can put it in your purse and it will not scratch on things. So this is something that is a positive thing, that these bend. So yeah, and these last a long time. So I have already one in use, and I think it will last me like 4 or 5 months easily, more than that even. So these are going to last me for years, inshallah. So yeah. So the next item that I bought was this wet brush. Wet brush वो होता है, like normally you do not brush in your wet hair. So लेकिन ये वेट ब्रश से आप कर सकते हैं ब्रशिंग इन योर वेट हेयर. एंड द वे आई यूज़ इज़ दैट कि मैं शावर में जब कंडीशनर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद आई ब्रश माई हेयर थ्रू दिस. उससे ये होता है कि कंडीशनर एक तो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो जाता है सारे बालों के अंदर, और या सो और टेंगल्स भी रिमूव हो जाती हैं. उस कंडीशनर के अलावा मैंने इसको गीले बालों में यूज़ नहीं किया. मेरे बाल बहुत ड्राई और थिन हैं और डैमेज्ड हैं, सो आई डोंट वांट टू फर्दर डैमेज देम बाय कॉमिंग देम वेट. और मुझे इतनी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई वेट बालों को कॉम करने में की. ये अराउंड $4-5 का था. ये वेट ब्रश लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये भी TJ Maxx से लिया था. ये दोनों चीज़ें मैंने TJ Maxx से ली थी. $4-5 का था, सस्ता था. आई जस्ट पिक्ड इट अप. मैंने पहले रिव्यूज़ वगैरह इसके नहीं देखे हुए थे, सिर्फ मुझे ये पता था कि वेट ब्रश एक चीज़ होती है. सो आई जस्ट बॉट इट, एंड सो फार इट्स गोइंग गुड. सो लेट्स सी आगे क्या चलता है. सो इनको साइड पे रखते हैं. अगली चीज़ जो मैंने ली है वो ये थी. दिस इज़ ए या दिस इज़ लाइक अ पिन सेट. हेयर पिन्स का सेट है. एक और पिन भी थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई है. आई विल शो यू गाइज लेटर, बाद में दिखाती हूँ. ये 4 का सेट है, और ये तकरीबन $7.99 का था. तकरीबन $9 विद टैक्स डाल के बन जाता है. और ये मैंने Forever 21 से लिया था. इफ़ यू गाइज वांट टू सी माई Forever 21 शॉप विद मी व्लॉग, तो वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है. जो शिकागो व्लॉग्स के अंदर जो आउटलेट मॉल का वीडियो है, उसके अंदर मैंने डाला है. आई वेंट टू Forever 21, और वहाँ पे मैंने फ़िल्मिंग की थी. अच्छा, इनके बारे में मैं बताती हूँ कि ये जो है, ये वाली अभी मैंने खोली नहीं है. देर टेप्ड फ्रॉम बिहाइंड. ये पिन्स मैंने पाकिस्तान में भी कुछ इंस्टाग्राम शॉप्स पे मिलते हुए देखी हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये और जगह पे पाकिस्तान में भी पड़ी होंगी. मैंने ये ख़रीद ली हैं. आई काइंड ऑफ रिग्रेट दैम. एक पिन इनकी मैंने यूज़ की, और वो मैंने छोटी ईद पर लगाई थी. अभी 2020 में जो छोटी ईद आई थी उस पर मैंने लगाई थी. एंड द थिंग इज़, it did not have any grip, and it just kept falling. It was very beautiful to look at, but I had to put 2 other pins just to make that pin stick. So I am not sure. अब वो वाली पिन जो मैंने यूज़ कर लिया, वो तो आई एम नॉट यूजिंग इट अगेन. आई माइट गिव इट टू समवन एल्स, बट दीज आई हैवंट ट्राइड, एंड आई थिंक आई विल ट्राई देम इन दिस ईद और सम स्पेशल ओकेजन. एक्चुअली जब से लॉकडाउन आया, कुछ स्पेशल ओकेजन ऐसा आ भी नहीं रहा कि आई गेट टू यूज़ दिस. लेकिन ये वैसे पर्ल लगे हुए हैं, और गोल्ड पर्ल्स हैं. गोल्ड इसका वो है, और अच्छी लगती हैं लगाई हुई. जो मैंने यूज़ की है उसकी ग्रिप नहीं थी, लेकिन वो भी लगा कर अच्छी बहुत लग रही थी. सो इफ़ यू गाइस कैन फाइंड समथिंग जिसके ऊपर पर्ल्स लगे हों और ग्रिप भी अच्छी हो, तो यू गाइस कैन यूज़ दैम. सो ये हो गया. Alright, so the next item that I got was this hand cream. ये भी मेरा जो शिकागो व्लॉग है उसके अंदर you guys can see that I went to this Law Octane brand की शॉप पे मैं गई थी.
और ये वहाँ से मैंने हैंड क्रीम ख़रीदी। दिस वाज़ द फर्स्ट हैंड क्रीम जिसकी मुझे स्मेल बड़ी अच्छी लगी। उनके पास बहुत सारे हैंड क्रीम्स के वर्जन थे, इवन सेट्स भी थे, लाइक 3 और 4 के सेट्स थे, और अ लॉट ऑफ अदर बॉडी केयर स्टफ एज़ वेल। बट ये वाली मुझे आई रियली लाइक दिस वन, इसकी स्मेल अच्छी थी एंड आई जस्ट बॉट दैम। और हैंड क्रीम की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बिकॉज माई हैंड्स वर लाइक सारे क्रैक हो रहे थे एंड आई स्टिल डू नीड हैंड क्रीम, क्योंकि पाकिस्तान आके फिर सैनिटाइज़र यूज़ कर करके हाथ धो के हाथों का ड्राइनेस लेवल जो है ना वो नेक्स्ट लेवल चला गया। सो इट्स अ गुड थिंग दैट आई बॉट इट। लेकिन मैं थोड़ी सी कंजूस भी हूँ, सो आई एम जस्ट लाइक यूजिंग इट वेरी slowly and I want to just take my time using it. So but this is a good cream. अच्छा, ये La Octane की I think it was around $12, which is a lot, for like a हैंड क्रीम। और नॉर्मली जो हैंड क्रीम में $5-6 की अच्छी मिल जाती है, पाकिस्तान में तो और भी सस्ती मिल जाती है। यू कैन जस्ट यूज़ एनी बॉडी लोशन। लेकिन मैंने सिर्फ एक शशका करने के लिए ख़रीद ली, लाइक आई जस्ट वांटेड टू फील फैंसी विद अ फैंसी हैंड क्रीम, तो ये मैंने ख़रीद ली। एंड दिस इज़ और ये जो हैंड क्रीम है इसका आई थिंक जो स्मेल का नाम है इट्स फेस्टिव गार्डन एंड इट स्मेल्स लाइक अ गुड परफ्यूम, लाइक काफ़ी अच्छी स्मेल है इसकी। सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन। दे हैड अदर smaller hand creams too, and they had like a larger hand cream too, but उसके अंदर ये इतनी सारी smells नहीं थी. The smaller ones had a lot of good smells. There was lavender, there was some vanilla scent and all that, but I liked this one. और नॉर्मली मुझे वनीला सेंट्स या वार्म सेंट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए आई जस्ट गो फॉर लाइक अ फ्लावरी और लाइक अ फ्रूटी सेंट। सो इसकी बहुत अच्छी खुशबू है, तो ये लिया था। अगली चीज़ क्या दिखाऊँ? अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैं ये दिखा देती हूँ। दिस इज़ बेकाज़ स्किन परफेक्टर, लाइक द बेका हाईलाइट इन द कलर शैम्पेन पॉप। अच्छा, इसकी भी बड़े मज़े की स्टोरी ये है कि आई हैव बेका हाईलाइटर इन माई कलेक्शन, लेकिन वो इन द कलर ओपल है। उस वक़्त जब मैंने लिया था शायद शैम्पेन पॉप आया नहीं था, मे बी आया हो, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस, बट बाद में मुझे पता चला कि शैम्पेन पॉप बड़ा अच्छा कलर है एंड ऑल दैट। तो आई जस्ट bought this. I hope you guys can see. ये शैम्पेन पॉप है and I will just swatch it. And here, okay, so ये है, it's a good highlight. Actually मैंने जब ओपल लिया था, the formula of that and the color did not suit me at all, and everyone used to say good things about Becca highlighter, but I was just not sure. और ये मैंने ट्रैवल साइज़ में लिया। ट्रैवल साइज़ थोड़ा सा सस्ता होता है, इसकी प्राइस मुझे नहीं पता। आई विल शो यू द प्राइस इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या स्क्रीन पे डाल दूँगी। अभी मुझे इसकी प्राइस जो है वो भूल गई है, बट ये मैंने ट्रैवल साइज़ में इसलिए लिया क्योंकि ट्रैवल साइज़ वाले हाइलाइटर जो है वो फिर भी आप यू कैन कैरी दैम इजीली, एंड हाइलाइटर इज़ समथिंग जो बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है। अगर अच्छा हाइलाइटर हो तो वो बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है, तो फिर वो देयर इज़ सो मच दैट इज़ लेफ्ट, और 1-2-3 साल बाद लाइक थिंग्स स्टार्ट टू ब्रेक, या फिर आपका दिल भर जाता है एंड इट्स स्टिल लाइक पूरा का पूरा खाली, पूरा का पूरा आपके पास भरा हुआ पड़ा है एंड आपका दिल भर गया एंड यू हैव मूव्ड ऑन टू सम न्यू हाइलाइटर। सो इसलिए मैंने ये ट्रैवल साइज़ में लिया था। दिस आई गॉट फ्रॉम, आई थिंक आई गॉट इट फ्रॉम अल्टा। अल्टा इज़ ऑल्सो लाइक अ मेकअप स्टोर इन USA, सो उधर के ट्रैवल सेक्शन से मैंने ये हाइलाइटर लिया था। सो या अब आगे दिखाती हूँ, या ये दिखाती हूँ। ये फाउंडेशन मैंने लिया था। एक्चुअली माई स्किन बिकेम वेरी ड्राई, सर्दियों का मौसम था और सर्दियों में वैसे भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो आई वॉज़ ऑलरेडी लुकिंग फॉर अ न्यू फाउंडेशन, तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन चाहिए था। सो आई हर्ड गुड थिंग्स अबाउट इट कॉस्मेटिक्स CC क्रीम, कलर करेक्टिंग फुल कवरेज क्रीम। सो इट्स लाइक अ CC क्रीम, पर ये पूरा फाउंडेशन ही है एंड इट डज़ नॉट ड्राई योर स्किन। मेरे पास एस्टे लॉडर का फाउंडेशन था। आई विल डू अ होल फाउंडेशन रिव्यू वीडियो बाद में करूँगी, लेकिन ये था कि इट वाजंट बैड, वो बहुत अच्छा फाउंडेशन है, लेकिन मेरी स्किन एक तो बहुत ज़्यादा ड्राई रह रही थी और मुझे इतना फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं चाहिए था। इसके अंदर SPF 50 तक है
और मुझे ये काफ़ी अच्छा रहा है। इट लुक्स लाइक स्किन, बहुत खूबसूरत लगता है। इसके 3-4 वर्जन्स हैं, एक्चुअली एक ड्राई स्किन के लिए एक अलग से और वर्जन है। आई विल ट्राई टू पोस्ट इट ऑन द स्क्रीन अगर मुझे वो मिला। बट एक्चुअली फिर मैंने आई जस्ट ऑप्टेड फॉर दिस वन, मैंने ड्राई स्किन वाला जो है वो नहीं लिया। एंड इट्स इन द कलर, आई थिंक, लेट मी सी, लाइट मीडियम में है। और एक्चुअली ये था कि ये मैंने सफोरा से लिया था। एंड आई first of all I went to Sephora and I got a sample for it. If you ask Sephora पे, they can give you a sample of a foundation, so I asked for its sample. और मैंने 1-2 दिन यूज़ किया and then I liked it, so I just bought it. Let me show you guys the swatch. So ऐसे है इसका swatch। थोड़ा सा डार्क है फ्रॉम माई ओन स्किन, लेकिन जब लगाते हैं तो इट जस्ट ब्लेंड्स विद इन द स्किन, लाइक आई विल शो यू गाइस। सो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा रहा। आई यूज्ड इट थ्रू आउट माई ट्रिप एंड बाद में भी मैंने यूज़ किया। लुक्स लाइक स्किन, तो मैंने सही से भी ब्लेंड नहीं किया। या सो हियर यू गाइस कैन सी, यहाँ पे थोड़ा हाइलाइटर भी लगा हुआ था। सो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग था। तो मेरा जो है ड्राई स्किन का मसला इसके साथ सॉल्व होता रहा है। सो या अच्छा, ये हो गया, इसकी बात हो गई है। ये मैंने सफोरा से लिया था। इट वाज अराउंड आई थिंक $40 और समथिंग। मैं प्राइस काफ़ी चीज़ों की भूल गई हूँ। आई विल पुट एवरीथिंग इन द ऑन द स्क्रीन, या तो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और एवरीथिंग दैट आई बॉट, नथिंग इज स्पॉन्सर्ड, एवरीथिंग दैट आई बॉट वाज फ्रॉम माई ओन मनी। लेकिन इसके बारे में मैंने अच्छे रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा सुने हुए थे। सो आई वाज लाइक ये अच्छी चीज़ है, चलो ख़रीद लेनी चाहिए टाइप। ठीक है, ये हो गया। अगली जो चीज़ है वो मैं इकट्ठे दिखा देती हूँ। 3 मॉइस्चराइज़र्स लिए थे मैंने। अब मैं अपनी ड्राई स्किन के बारे में काफ़ी बता चुकी हूँ, तो यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि बड़ी ड्राई स्किन हो गई थी। और वैसे बाहर के मुल्क में जाकर विद ड्राई विंटर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है। तो ये मैंने 4-5 मॉइस्चराइज़र ले ली थी। और मुझे वैसे भी स्किन में ड्राइनेस का जनरली भी मसला है। दिस इज़ क्लिनिक्स मॉइस्चर सर्ज इंटेंस स्किन फोर्टिफाइंग हाइड्रेशन। ये मैंने अभी तक खोला नहीं है। ये मैं 3-4-5 बार यूज़ कर चुकी हूँ, बल्कि इवन मोर दैन दैट। मैंने इसकी काफ़ी जार्स यूज़ कर चुकी हूँ। दिस आई बॉट फ्रॉम अल्फता इन लाहौर एंड दिस इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान इन मैनी स्टोर्स। दिस इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। अब मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन दिस इज़ अराउंड $60 और समथिंग। आई एम नॉट श्योर। वैसे मैं प्राइस जो है वो स्क्रीन पे डालूँगी या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। दिस इज़ मॉइस्चर सर्ज इंटेंस। मॉइस्चर सर्ज लाइन की ऑयली स्किन के लिए भी होती हैं, लेकिन ये इंटेंस वाला जो है ये मुझे चाहिए होता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव यूज्ड ओवर एंड ओवर एंड दिस इज़ वेरी गुड। सो मैंने इसका एक जार ख़रीद लिया था। सेकंड जो मैंने लिया है, अच्छा इसको मैं साइड पे करूँ, ओके। सो जो सेकंड मैंने लिया है प्रोटीनी पॉलीपेप्टाइड क्रीम। ये जो है ड्रंक एलिफेंट की है। दिस वाज आल्सो एक्सपेंसिव। दिस वाज आई थिंक अराउंड $60। इसकी प्राइस मुझे थोड़ी पता है। एंड एक्चुअली ड्रंक एलिफेंट की स्किन केयर आजकल बहुत मशहूर है। सो आई वेंट टू सफोरा जब मैं फाउंडेशन लेने गई थी, तो फिर मैंने उस वक़्त इसका भी सैम्पल एक छोटी सी बॉटल में डलवा लिया था। और आई यूज़ड इट फॉर 2-3 डेज़। इसका काफ़ी विजिबल डिफरेंस है और मैंने अभी भी आके रिपीटेडली ये यूज़ की है। बहुत अच्छी क्रीम है और इट्स एक्सपेंसिव। सर्दियों में मैं थोड़ा डरती थी, सिर्फ रात को यूज़ करती थी, क्योंकि सर्दियों में ये मसला हो जाता है कि आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, उसके 2-3 घंटे बाद नमाज का टाइम हो जाता है, यू वज़ू, तो फिर दोबारा मॉइस्चराइज़र उतर गया एंड देन यू पुट इट अगेन एंड इस तरह से। तो महंगी क्रीम जो है वो मैं सर्दियों में दिन के टाइम नहीं लगाती, लेकिन रात को मैं जब भी लगाती थी आई वुड वेक अप और मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड होती थी। ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहती जब आप ये वाली क्रीम लगाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ तो मैं लगा लेती हूँ, लाइक रात में लगाती हूँ सिर्फ। और इसकी बड़ी मज़े की पैकेजिंग है। लेट मी शो यू गाइस। अच्छा, यहाँ से गंदी हो गई है, दिस इज़ समथिंग टू टेक केयर ऑफ। सो व्हेन यू प्रेस इट द क्रीम कम्स आउट। तो ये बड़े मज़े की पैकेजिंग है एंड यू हैव टू क्लीन दिस पार्ट रेगुलरली, वरना ये क्रीम यहाँ पे जम जाती है इधर उधर। तो या लेट मी पुट द क्रीम ऑन माई हैंड्स। महंगी क्रीम है, ज़ाया नहीं करनी चाहिए, चुपचाप लगा लो। ओके, सो या तो ये बड़े मज़े की, ठहर जाए।
तो इसकी पैकेजिंग भी बड़ी अच्छी है कि अंदर बैक्टीरिया वगैरह नहीं जाते हैं और इस तरह से। और ये बहुत अच्छी क्रीम है, मैं रेगुलरली यूज़ कर रही थी और अच्छी रह रही थी। अब मैंने थोड़ी कम की है यूज़ करनी, बिकॉज आई एम सेविंग इट अप फॉर विंटर। अभी गर्मियों में तो इतनी ज़रूरत नहीं है, पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। सो ये एक हो गई है, ये भी डन हो गया। अच्छा, ये इजिप्शियन मैजिक है इसका नाम। इस क्रीम का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। यहाँ यूट्यूब पे एक चैनल था इरिज फातिमा का, एंड शी हैज़ बिन लिविंग इन कनाडा फॉर सम टाइम। और उनको लाइक ड्राई स्किन का भी मसला है, वो ड्राई स्किन को अंडरस्टैंड भी करती हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए और इस तरह से। तो उनके चैनल से मुझे इजिप्शियन मैजिक का पता चला। तो मैंने इसका पहले नाम नहीं सुना हुआ था, बट शी केप्ट सेइंग कि ये बहुत देर से यूज़ होती है इस तरह। तो जब मैं टीजे मैक्स पे गई तो ये कम प्राइस पे पड़ी हुई थी, इट्स अराउंड $18, बट वहाँ पर वो ये शायद $13 इस तरह से पड़ी थी। तो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट ट्राई इट एंड लेट मी शो यू गाइस खोल के। इट लुक्स लाइक बीज वैक्स और ऑयली सा एक मिक्सचर है, उस तरह की है। और थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। तो ये सिर्फ सर्दियों में मैंने यूज़ की थी थोड़ी सी, और ये ज़रा सी लगती है, इतना सा आप बस हाथ लगाएं अंदर और ये इससे आपका पूरा फेस जो है वो कवर हो जाएगा बहुत इजीली। तो ये थोड़ी सी लगती है एंड इट गोज़ अ लॉन्ग वे। और ये रात को ज़्यादा अगर आप लगा के सोएं तो बहुत ज़्यादा एक चीज़ होती है कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होती और सॉफ्ट रहती है। सो दिस वॉज अ गुड डिस्कवरी दैट आई डिस्कवर्ड फ्रॉम another यूट्यूबर। तो या दिस इज़ कॉल्ड इजिप्शियन मैजिक, और मुझे इसका पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। अच्छा, देन दिस मॉइस्चराइज़र दैट आई गॉट, ये डॉक्टर जार्ड का सीरामिडीन क्रीम है। अच्छा, ये भी मैंने टीजे मैक्स वगैरह पे कम प्राइस में पड़ी हुई देखी थी, बट एट दैट टाइम आई डिडंट बाय इट। और मैं एक्चुअली दूसरे मॉइस्चराइज़र्स ख़रीदने के लिए गई थी, सफ़ोरा में गई थी। तो सफ़ोरा में जो खातून होती हैं, शी सेड कि ये आप ट्राई करेंगे, आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है एंड यू कैन लाइक बेनिफिट फ्रॉम दिस। और सफ़ोरा के अंदर जो काम करने वाले होते हैं, समटाइम्स दे गिव वेरी गुड एडवाइस, बट समटाइम्स दे माइट बी पेड बाय द कंपनी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। सो आई एम नॉट श्योर। उसने स्टोर के अंदर ही मेरे मुंह पे ये लगाई थी, मुझे लग रहा था कि मॉइस्चराइजिंग है, उस वक्त मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। सो आई वाज लाइक 2-3 भी ख़रीद लूँगी तो मुझे लाइक मेरे यूज़ हो जाएंगे। सो आई थॉट मे बी आई शुड ट्राई समथिंग न्यू, क्योंकि वो क्लिनिक वाला तो मैं, लेट मी शो यू गाइस, ये क्लिनिक वाला तो मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ और आई नो दैट इट्स गुड। लेकिन ये वाला थोड़ा सस्ता था, इट वाज अराउंड $38। तो मैंने ये वाला फिर ऑप्ट कर लिया और ये वाला भी ख़रीद लिया साथ। तो बाद में मैंने टीजे मैक्स पे जाकर देखा तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ा हुआ था। सो या ये हो गया कवर। नेक्स्ट आइटम 2-3 दिखा लेते हैं इकट्ठे। और राइट, सो नेक्स्ट आइटम ये मारियो बडिस्की का स्किन केयर है। इसके बारे में भी सम पीपल रियली लाइक इट, सम पीपल डोंट। मुझे इतना कुछ से मसला नहीं हुआ, आई रियली लाइक इट। अच्छा, ये फेशियल स्प्रे है, ये यूज़ का कैसे होता है, यू कैन यूज़ इट बिफोर योर मॉइस्चराइज़र। मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है, तो मैं मॉइस्चराइज़र से पहले एक टोनर या एक बहुत लाइट एसेंस लोशन लगाती हूँ, एंड आई डिड नॉट हैव दैट इन शिकागो। सो मैंने ये वाला ख़रीदा था एंड इट सर्व द पर्पज़ वेल। मॉइस्चराइज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं ये करता, लेकिन फिर भी इट्स गुड। एक लेयर छोटी सी लगाने के लिए ये था, काफ़ी था। और ड्यूरिंग द डे भी इफ़ यू आर वेयरिंग मेकअप, यू कैन जस्ट स्प्रे इट एंड इट कैन रिफ्रेश एंड मॉइस्चराइज योर स्किन। मैंने मेकअप के साथ इसे यूज़ नहीं किया, मेकअप से पहले यूज़ किया है और ठीक ही रह रहा है। और गर्मियों में मैं इसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में आई एम नॉट यूजिंग अ फुल मॉइस्चराइज़र समटाइम्स। सो व्हेन एवर आई वॉश माई फेस आई स्प्रे माई फेस विद दिस। और ये इतना मैंने यूज़ कर लिया है, इतना यहाँ तक तो यूज़ कर लिया है मैंने, यहाँ तक। और लेट्स सी, कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं, बट मुझे अभी तक कोई ख़ास मसला नहीं हुआ इससे। सो एक ये है, लेट मी जस्ट, अच्छा, दिस इज़ एस्टे लॉडर्स एडवांस नाइट रिपेयर। ये मैंने स्किन केयर के लिए लिया था, बट इसकी एक बड़ी बॉटल आती है। दिस बॉटल इज़ वेरी स्मॉल, यू गाइस कैन सी, ये मेरे हाथ के यहाँ पे फिट आ रही है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल बॉटल। ये भी मैंने ट्रैवल साइज़ अल्टा से लिया था, उनका जो ट्रैवल साइज़ था वहाँ से मैंने लिया था। आई डिड नॉट वांट टू बाय अ फुल बॉटल, और उसके बाद फिर वो मेरे से यूज़ अप नहीं होती। मेरे पास काफ़ी स्किन केयर ऐसी पड़ी है जो मैंने 1-2 महीने यूज़ की है, उसके बाद वो बस पड़ी रही, तो फिर मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है। और थोड़ा सा ये कि इट्स ईजियर टू कैरी, सो आई कैन यूज़ इट वाइल आई एम ट्रैवलिंग। मुझे लग रहा था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवल इन माई लाइफ विच डिड नॉट हैपन। सो
इसलिए मैंने ये छोटी बॉटल ली थी, इट्स ईजियर टू ट्रैवल। और ये मैं खोल के दिखा देती हूँ। अच्छा, खोल के दिखाती हूँ। ये थोड़ा ऑयली नहीं है, थोड़ा क्रीमी सीरमी सा इसका टेक्सचर है। और ये मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं करना शुरू किया, और मेरी नालायकी की हद है, क्योंकि बस ये आके तो एक जगह पड़ा हुआ था। आई शुड स्टार्ट यूजिंग इट सो दैट आई कैन गिव अ रिव्यू। लेकिन इसके अच्छे रिव्यूज़ थे एंड लॉट ऑफ पीपल यूज़ दिस एंड से दैट दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। तो खैर ये है। और नेक्स्ट ये तो मैंने टारगेट से लिया। दिस इज़ डीप क्लिनजिंग ऑयल DHC का। मेरे पास ट्रैवल के लिए जाने के लिए कुछ छोटा क्लिनज़र नहीं था, तो वेन एवर आई वुड गो टू ट्रैवल तो मैं बड़ा सारा एक जार लेके हर जगह जा रही हूँ या इस तरह। तो दैट इज़ उसको रोकने के लिए ये $1 या $2 की ये दोनों चीज़ें मैंने ली थी। दिस इज़ ऑल्सो मॉइस्चराइज़र जो हाथों पे लगता है। दिस इज़ पामर्स कोका बटर फार्मूला। दिस इज़ वेरी फेमस एज वेल। तो इसका ट्रैवल साइज़ है, और ट्रैवल वाली बॉटल्स इतनी क्यूट हैं। ट्रैवल वाले पूरे सेक्शन में छोटी छोटी प्यारी प्यारी बॉटल्स पड़ी हुई हैं, और दे आर वेरी क्यूट। और या और $1 की, $2 की इस तरह से थी, काफ़ी सस्ती। तो फिर आई जस्ट पिक्ड। और इंशाल्लाह जब भी अब नेक्स्ट मैं ट्रैवल में जाऊंगी तो मेरी ट्रैवल टॉयलेटरी किट के अंदर ये होंगी। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट थिंग्स दैट आई गॉट, ये तो दो सफ़ोरा के जब मैंने लिया था, सफ़ोरा से शॉपिंग की थी। व्हेन यू शॉप फ्रॉम सफ़ोरा you can be eligible for some you can say samples. So कभी कभार वो खुद ही आपको samples दे देते हैं। लेकिन I will give you one advice that if you are shopping at Sephora, go to their person who's showing you stuff and tell them कि मुझे इस चीज़ के samples बना दें। जो भी चीज़ आपने नई ट्राई करनी है उसके आप samples खुद से बनवा लें। अदरवाइज़ they will give you these unknown samples। ये चेकआउट के ऊपर वो आपको देंगे। सो आई एम नॉट श्योर ये कौन सी कंपनी है, बायोसेंस और इनीज़ फ्री, आई डोंट नो ये कौन सी कंपनी है। लेकिन ठीक है, मुझे मास्क मिल गया, आई विल ट्राई दीज। लेकिन जैसे आई वेंट टू सफोरा एंड आई बॉट समथिंग एंड आई टोल्ड देम कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस फाउंडेशन का थोड़ा सा सैम्पल बना दें। सो दे हैव बॉटल्स एंड यू आर इंटाइटल्ड, इफ़ यू बाय समथिंग यू आर इंटाइटल्ड टू 2 to 3 स्मॉल सैम्पल्स। सो मैंने इसका एक सैम्पल बनवा लिया था। आई बॉट सम स्टफ़ पहले, तो मैंने इसका एक सैम्पल बनवाया था और इसका एक सैम्पल बनवा लिया था। एंड आई यूज़ दैम एंड आई लाइक दैम एंड आई वेंट अगेन एंड आई बॉट दैम। तो उससे आपका फ़ायदा हो जाता है अगर इस तरह के सैम्पल्स लेंगे। अब मैं आई एम नॉट इन द मार्केट फॉर बाइंग लाइक क्ले मास्क और लाइक सिरम और लाइक थिंग। तो मुझे तो इन कंपनीज़ का पता भी नहीं है। सो आई विल यूज़ दैम, बट कोई लॉन्ग टर्म मेरे काम नहीं आए। लेकिन ये मैंने क्योंकि इनके सैम्पल्स यूज़ किए और मुझे पसंद आई थी, तो आई जस्ट बॉट द होल थिंग, तो मेरे काम आ गई। सो दिस इज़ द टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज अबाउट शॉपिंग इन सफोरा। तो ये एक चीज़ हो गई है। अच्छा, अगली चीज़ जो मैंने ली है, दिस इज़ द सिटाफिल जेंटल क्लिनज़र। मैं फोमिंग क्लिनज़र्स बहुत कम यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। ये जो DHC का है ये भी मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो नॉन फोमिंग, ये ऑयल क्लिनज़र है और ये भी जेंटल क्लिनज़र है सिटाफिल का। आई बॉट 2 बॉटल्स ऑफ दिस। एक मैंने वहाँ पर ही यूज़ की थी, इट वाज अप टू हाफ यूज़ हो गई थी, पर आई लेफ्ट इट देयर बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू कैरी अ हाफ ओपन बॉटल, क्योंकि वो लीक भी हो सकती है। और ये मैं ले आई थी। आई विल ऑलवेज़ कीप बाइंग दिस, ये बहुत अच्छा है और इट्स गुड फॉर वेरी सेंसिटिव स्किन। तो ये जो है